So hello friends, now we start with the factor theorem. Now recall that the factor theorem that you have studied up to class 10th or 9th maybe, that was that if P of A is equal to 0, then x minus A is a factor of P of x. This is what we have studied till class 10th. This is class 10th stuff that we know. The factor theorem and the remainder theorem. So if P of A is 0, then x minus A is a factor of Px. Now the same logic is extended in the determinants also. तो suppose यदि हम बोलते हैं कि कोई determinant है, if delta A is 0, then x minus A must be a factor of x minus A must be a factor of x minus A must be a factor of delta x. Generally जब हम factor theorem use करते हैं, it is not used very frequently, it is not used very frequently, but whenever we use this factor theorem is generally used with symmetry. Factor theorem is used with symmetry. Symmetry in the sense कि determinant की degree क्या होगी. तो symmetry का use करना along with the factor theorem, in certain cases this simplifies the determinant. This will help you in expanding the determinant या finding the value of the determinant without expanding. दोनों चीज़ें यूज़ करनी सीखनी पड़ेगी हमें. फैक्टर थ्योरम प्लस सिमेट्री दोनों का इस्तेमाल करेंगे, है ना. तो विल टेक एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट कि हाउ डू आई यूज सिमेट्री एंड डिग्री along with the factor theorem to evaluate a determinant. Let's move to the illustration. ध्यान रखना, we'll be using two parameters. The first one is factor theorem and degree of determinant. हम ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं to solve the question effectively. Factor theorem अकेले इस्तेमाल कम होती है. It is generally used with the degree of the determinant. So let's start with the question. Now in this determinant what I do is, let's say what happens if x is equal to y. What happens if x is equal to y? So if x is equal to y, the determinant becomes, let's say I put x is equal to y, so you get y square and clearly this is 0. So therefore x को y रखने पे determinant की वैल्यू 0 आ रही है. इसका मतलब हुआ therefore by factor theorem x minus y must be a factor, because हम x को y रखते हैं तो determinant की वैल्यू 0 आती है. तो that means x minus y must be a factor of the determinant, right? Now similarly if I put y equal to z, so in this case we get x square x1 z square z1 z square z1. मैंने y की जगह z रख दिया, तो जब हम y की जगह z रखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे you get this value which is again 0 because two rows are identical. और since y को z रखने पे determinant की वैल्यू 0 आ रही है, therefore I can claim by factor theorem y minus z must be a factor. This should also be a factor. And similarly you can check, you can verify that z equal to x रखने पे determinant की वैल्यू फिर से 0 आएगी, because first and third row will be identical, and this would imply z minus x is also a factor of the determinant, right? So अभी तक मुझे ये पता चल गया therefore this determinant must be equal to x minus y, क्योंकि x minus y इसका factor है, into y minus z was a factor, into z minus x, into something else. Now you have to identify this. और क्या चीज़ हो सकती है इसका फैक्टर? भाई तीन तो हमने ढूंढ लिए, लेकिन क्या और कोई फैक्टर होगा या सिर्फ यही होंगे या कुछ और भी हो सकता है? तो ये अभी हमें पता करना है.
तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव यूज्ड दिस फैक्टर थ्योरम हियर. अब एक चीज़ टू असर्टेन कि इन तीन के अलावा और फैक्टर है नहीं, और अगर हैं तो कौन कौन से हैं, हमें अब डिग्री का इस्तेमाल करना होगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ डू आई यूज डिग्री हियर, राइट. तो देखो डिग्री कैसे इस्तेमाल होती है. अगर हम इस डिटर्मिनेंट की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द डिटर्मिनेंट, let's say if I talk about the determinant delta, which is x square x1 y square y1 z square z1, और यदि हम इसको एक्सपैंड करें, let's say I simply start with the first row, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी this will be something like x square into y minus z minus x into y square minus z square plus 1 into y square z minus z square y. And what you observe is that this expression is of degree 3 in x, y and z. डिग्री मतलब क्या हुआ कि यदि हम एक्स स्क्वायर वाई देखें, या फिर लेट्स से एक्स स्क्वायर जेड देखें, या मे बी एक्स स्क्वायर वाई देखें, तो हम देखेंगे कि एक्स की पावर अल्फ़ा, वाई की पावर बीटा, जेड की पावर गामा, हर टर्म जो है वो इस टाइप की है. और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमेशा 3 आएगी. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 है. जैसे यहाँ पे इट इज़ 2 प्लस वाई की पावर 1 3, 2 प्लस जेड की पावर 1 3, 1 plus 2 which is again 3. So this determinant is of degree 3. ये determinant x y z में डिग्री 3 का होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि ये तो डिग्री 1 है, this is डिग्री 1, x minus y is डिग्री 1, y minus z is डिग्री 1 and z minus x is also डिग्री 1. तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन बच्चों हमारे पास आया, ये तो अपने आप ही डिग्री 1 का है. तो दिस इज डिग्री 1 इंटू डिग्री 1 इंटू 1, तो दैट मीन्स दिस इज ऑलरेडी ऑफ डिग्री 3. ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया, जो फैक्टर्स कॉमन है, इनको प्रोडक्ट इनका डिग्री 3 में आ रहा है, डिटर्मिनेंट डिग्री 3 का है. इसका मतलब ये जो मेरे पास कांस्टेंट है, दिस विल नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग एक्स वाई एंड जेड. इट कैन नॉट कंटेन एनी टर्म, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिग्री 3 हो चुकी है. अगर आप एक्स वाई जेड की कोई टर्म डालोगे तो उसकी डिग्री 3 से ज़्यादा हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल. डिटर्मिनेंट की डिग्री 3 है, लेफ्ट हैंड साइड हैज़ डिग्री 3, राइट साइड हैज़ डिग्री ग्रेटर देन 3. इट इज़ इम्पॉसिबल, मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पे, इट शुड बी सम कांस्टेंट वैल्यू ओनली. एट द मोस्ट इट कैन बी कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी एक्स, इट कैन नॉट बी वाई, इट कैन नॉट कंटेन जेड. सो नाउ द चैलेंज इज कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी. तो अगेन लेट्स एक्सटेंड दिस लॉजिक. So now you have x square x1, y square y1, z square z1 must be equal to some constant lambda times x minus y minus z minus x. And since this is true for all values of x, y, z, therefore let's say I put x equal to 1, y equal to maybe 0, and maybe z equal to 2. So if I put these values, the left side becomes determinant of 1 1 1 0 0 1 and 4 2 1, and the right side becomes lambda times x minus y will be 1, y minus z minus 2, and z minus x will be 1. Therefore, अब लेफ्ट साइड को अगर हम एक्सपैंड करें, वी एक्सपैंड इट अलोंग द सेकेंड रो, तो व्हाट यू फाइंड इज, अगर सेकेंड रो से एक्सपैंड करते हैं तो दिस इज सिंपली, पहली टर्म तो 0 ही आएगी, अगली टर्म भी 0 ही है, तो सिर्फ इस 1 से फर्क पड़ेगा. तो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी, दिस इज प्लस माइनस, तो यू गेट माइनस टाइम्स cross multiplication 2 minus 4, which is minus 2, and right side is minus 2 lambda, right. एक बार फिर से चेक कर लो, लेफ्ट साइड विल बी
if I expand it along the second row, you get this. So you get lambda is equal to -1, and now you plug in the value lambda equal to -1 to get the answer, right? So again, this is how we use the degree along with the value of the determinant. फैक्टर्स को ढूंढते हैं और डिग्री को ढूंढते हैं, एंड देन वी कोरिलेट. ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन आप चाहो तो चेक कर लेना. जस्ट चेक द कैलकुलेशंस इन दिस पार्ट पर्टिकुलरली. तो मेरे ख्याल से लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी या -1 आएगी, एक बार चेक करके देख लो. बट दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. आई एम टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई विल नॉट सॉल्व इट कंप्लीटली, ये आप खुद ही सॉल्व करोगे. आई विल जस्ट गिव यू द आइडिया, राइट? तो प्रोबेबली इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन you can easily identify these three factors using factor theorem. They can be identified. तो वापस से मैं एक बार डिग्री और समझाता हूँ इसके थ्रू. तो अगर हम डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट देखें लेफ्ट साइड पे, तो आप देखोगे दिस इज समथिंग लाइक x इंटू एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स जेड क्यूब, देन माइनस सो ऑन. सो मैं देख सकता हूँ दिस इज ऑफ डिग्री 5. दिस इज डिग्री 5 इन एक्स वाई जेड. ठीक है, तो अगर ये डिग्री 5 एक्स वाई जेड में, तो इसका मतलब हुआ कि इन 3 के अलावा देयर शुड बी अनदर सेकेंड डिग्री फैक्टर. देयर शुड बी अनदर सेकेंड डिग्री फैक्टर इन एक्स वाई, एंड देयर आर 2 सेकेंड डिग्री फैक्टर्स पॉसिबल इन एक्स वाई. नाउ यू कैन हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एक फैक्टर है. You can also have xy, yz, zx. This is another factor, right? तो अब सवाल उठता है कि ये दोनों में कौन सा फैक्टर लेंगे और क्यों लेंगे. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यही दोनों क्यों होंगे? तो इसका रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज द डिटरमिनेंट इज सिमेट्रिकल इन एक्स वाई जेड. डिटरमिनेंट आप देखोगे एक्स वाई जेड में एक जैसा ही है, तो इसीलिए मुझे ऐसे फैक्टर्स ढूंढने जो एक्स वाई जेड में एक जैसे हो. तो बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री देर आर ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर दिस और दिस. अगर सेकेंड डिग्री की बात करें तो ऐसे, अगर जैसे थर्ड डिग्री में चाहिए तो फिर इट कैन बी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब. दिस इज इन थर्ड डिग्री, सिमेट्रिकल इन एक्स वाई जेड. यू कैन ऑल्सो हैव एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड. ये भी हो सकता है. तो दिस इज डिग्री 3, दिस इज डिग्री 3, दिस इज सिमेट्रिकल इन डिग्री 3. मुझे डिग्री 2 में सिमेट्रिकल चाहिए, तो दीज आर द ओनली 2 ऑप्शंस. ठीक है, तो अब इन दोनों में कौन सा लेंगे, तो ये पहले डिसाइड नहीं हो सकता है ना. वी कैन नॉट डिसाइड इट बिफोर हैंड कि मैं इसको लूंगा या उसको लूंगा, कौन सा लूंगा. तो द राइट वे ऑफ सॉल्विंग दिस इज यू स्टार्ट बाय राइटिंग द डिटरमिनेंट एज एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई as x minus y, y minus z, z minus x. ठीक है, into, अब मुझे 5th डिग्री चाहिए. दिस इज ऑलरेडी डिग्री 3, सो आई नीड डिग्री 2 expressions which are symmetrical in x y z, and it can be any one of them, it can be both of them also. So we write lambda times x square plus y square plus z square plus mu times xy plus yz plus zx, and then we try to find the values of lambda and mu. अब हम lambda mu पता करेंगे. lambda mu कैसे पता करेंगे? तो भाई इसके लिए अब आप क्या करोगे कि you can start by equating coefficient of maybe let's say x to the power 4 on both sides. एक्स की पावर 4 को कंपेयर है ना, दोनों तरफ इक्वेट कर देते हैं. नाउ दिस इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन. लेफ्ट साइड में डज नॉट कंटेन एक्स टू द पावर 4. आप चेक करके देखो, एक्स टू द पावर 4 आएगा ही नहीं. लेफ्ट साइड डज नॉट कंटेन एक्स टू द पावर 4. जबकि राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 मुझे कैसे मिलेगा? एक्स यहां से माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो
कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इंटू वाई कर लेते चलो. तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इंटू वाई इन द राइट साइड विल बी मे बी लैम्डा और माइनस लैम्डा. एक बार चेक कर लेना. So this will immediately give you lambda is equal to 0. In the same way, you can compare another coefficient. Maybe you can go for something like x cube y square, or maybe y cube z square on both the sides. So you can again equate the coefficient of these two on both the sides to get the result. You'll get the value of mu also. So you can use this to find mu. So the key idea is to solve the questions using factor theorem. आपको डिग्री और सिमेट्री का इस्तेमाल करना होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज और ये दिस इज नॉट अ वेरी कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ये बहुत कम तरह से यूज होता है, लेकिन स्टिल द बेसिक आइडिया इज यू शुड बी यूजिंग दीज टू टुगेदर as far as the factor theorem and degree of the determinant are concerned, right? So now in the next video we'll be looking at the last property on determinants, and then maybe we'll start with some problem solving. Now we move to the next and the last property of determinants, which is very important, and it says, it's an interesting property actually. What this property says is that we can add or subtract a multiple of some row or column in another row or column. मतलब हम डिटरमिनेंट की किसी भी रो का मल्टीपल, नॉन जीरो मल्टीपल, दूसरी रो या कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना. द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज. द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट will not change. That will remain same. So for example, suppose we have this determinant, delta here, and what I do is, in this determinant हम फर्स्ट रो में लैम्डा टाइम्स सेकेंड रो ऐड कर देते हैं. इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं. नाउ दिस मीन्स वी आर एडिंग lambda times r2 in r1. we are changing the first row. हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में lambda times सेकेंड रो ऐड कर रहे हैं, and as a result of this I get the new determinant delta dash. तो आप देख सकते हो delta dash में this element is r1 plus lambda times r2. This element is again, यहाँ पे हम देख सकते हैं this is r1 plus lambda times r2. वापस से अगर हम थर्ड एलिमेंट को देखें तो this is r1 plus lambda times r2. तो एक ये नया डिटरमिनेंट बन गया डेल्टा डैश, जिसमें हमने क्या करा कि डेल्टा में फर्स्ट रो में लैम्डा टाइम सेकेंड रो ऐड कर दी, एंड आई गेट अ न्यू डिटरमिनेंट डेल्टा डैश. एंड व्हाट आई क्लेम इज that delta dash will be equal to delta. मैं ये क्लेम कर रहा हूँ. Now how do I claim this? मैं कैसे कर सकता हूँ? How can I claim this result, है ना? तो it's very straightforward. What you can do is you simply split this determinant along addition subtraction in first row. To split along first row, let's see what happens. So I get delta dash is equal to a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 plus a2 lambda b2 lambda c2 lambda a2 b2 c2 a3 b3 and c3. We get this. If I split this determinant along the first row, we'll end up with these two determinants, right? And if you again observe the second determinant carefully,
if you observe the second determinant carefully, what you find is that this row and the second row, these two rows are proportional. The ratio same है, ratio is lambda. So these two rows are proportional. और मुझे पता है जब भी दो rows proportional होती है, the value of this determinant becomes 0, and this determinant is nothing but delta. चेक करके देखो, this was given to be delta. ये जो determinant था, this was same as delta, right? तो what happens is, if I add or subtract the multiple of a row or column into another row or column, the value of the determinant does not change. It will not change. So this is a very important approach. इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? How do I use this to solve the questions? तो let's take a simple situation जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. And you will appreciate the fact कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है मुझे. Let's look at this particular determinant. और suppose मुझे इस determinant की value बतानी है. Now conventionally the method of solving this will be कि हम इसको let's say अगर first row से expand करें तो I get 92 into, you get 7 6 of 42 minus 24 minus 84 into minus 24 minus 27 plus 61 times minus 32 minus 63, and you can very well see कि ये जो calculation हो जाएगा, this is not difficult, but then this might be irritating. ये काफ़ी bulky calculation है, and then there is no limit. मतलब हो सकता है examiner आपको 92 की जगह मे बी यहाँ पे 193 या मे बी gives you something like 19310, कोई और बड़ा नंबर दे देते. This becomes almost impossible using the conventional approach. So let's see how do I use the above property. इस प्रॉपर्टी का एक सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को छोटा कर सकते हो. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ऑब्जर्व द डिटरमिनेंट केयरफुली. आई हैव प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर फर्स्ट रो क्योंकि ये एलिमेंट्स बड़े हैं. और अगर मैं ध्यान से थर्ड रो को देखता हूँ तो व्हाट आई फाइंड इज 10 टाइम्स द थर्ड रो गेट्स क्लोज टू द फर्स्ट रो. ध्यान से देखो, थर्ड रो को अगर हम 10 टाइम्स करें तो फर्स्ट रो के बिल्कुल पास पहुंच रही है. सो नाउ दिस गिव्स मी एन अप्रोच, एंड दिस इज अगेन ऑब्जर्वेशन. मैंने मैथ्स में पहले ही कह रखा है, जब भी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी हो तो यू शुड बी वेरी गुड इन ऑब्जर्वेशन. सो दिस ऑब्जर्वेशन विल लीड वे फॉर द शॉर्टर अप्रोच. सो नाउ व्हाट आई डू इज, इफ आई कॉल दिस डिटरमिनेंट एज डेल्टा, तो मैं इसमें से फर्स्ट रो में आई एम मेकिंग अ चेंज. From the first row, I subtract 10 times the third row. ठीक है, फर्स्ट रो में से मैं 10 टाइम्स थर्ड रो सब्ट्रैक्ट करता हूँ. मुझे पता है इससे डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो फ्रॉम 92 I subtract 10 times the third row which is 90. From 84 I subtract 10 times the third row which is 80. From 61 I subtract 10 times the third row which is 60. Remaining elements being same, minus 4 7 3 9 8 6. And now we are done because this is a very simple determinant. This is 2 minus 4 9 4 7 8 1 3 6, and now you can easily expand this. I leave that for the homework. This is a simple determinant which you can expand easily, but then look at the ease of calculations when we use this subtraction of the multiple of a row or column. This becomes very handy in reducing the value of the determinants. या हमने देखा था कई बार कि determinant जितने ज़्यादा zeros होंगे, तो this is often used to create zeros in some row or column. You can use this to create zero in some row or column, क्योंकि जितने ज़्यादा जीरो में एक्सपेंशन उतना आसान होता है. दिस इज अनदर अप्रोच. यू कैन यूज दिस. वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी टू मे बी रिड्यूस द वैल्यू. वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी टू क्रिएट जीरोज इन सम पर्टिकुलर रो और कॉलम. जितने ज़्यादा जीरोज होंगे उतना कन्वीनियंट रहेगा. तो हाउ डू आई यूज दीज प्रॉपर्टीज नाउ? नाउ वी आर डन विद 11 प्रॉपर्टीज. हम लोगों ने डिटरमिनेंट में टोटल 11 प्रॉपर्टीज देख ली. द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द एप्लीकेशन. We'll be looking at the application of these properties, and you will appreciate the video only when you learn all the properties by heart. आपको ये 11 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए.
और ये ऐसे मत याद रखो कि प्रॉपर्टी 1 क्या कहते, मतलब इनको ऐसे याद रखो 11 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं. विदाउट लुकिंग एट द नोट्स यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि 11 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं. टोटलिटी में 11 पता हो, उसको लेफ्ट राइट कर करके नहीं देखना है हमें, सिर्फ 11 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रांसपोज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक प्रॉपर्टी है. फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं विद डिग्री, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई. इस तरह से किसी भी ऑर्डर में 11 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए. जब वो 11 दिमाग में होंगी तो फिर उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम क्वेश्चंस में यूज कर पाएंगे. राइट. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग फॉर द एग्जाम्पल्स, सिंपल एग्जाम्पल्स जिसमें हम इन प्रॉपर्टीज का रैंडमली यूज करेंगे. ऑलराइट. In the meantime, I'll still recommend that you revise all the properties by heart.